برائے ظہور امام زمانہ بلندتر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الملک الحق المبین خالق السماوات والارضین، والصلاة والسلام علی صاحب الدعوۃ النبویہ والعصمۃ الفاطمیہ والصولة الحیدریہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقابة النقویہ والحیبة العسکری والغیبة الالہ القائم بامر اللہ بلندتر صلوات۔ آج کی مجلس بسلسلہ شہادت جناب زینب کبریٰ منعقد کی گئی ہے۔ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ زینب کبریٰ کی ایک عظیم خاتون ہے، ان کی ایک عجیب عظمت ہے، لیکن یہ جو نسبت ہے، یہ جو عظمت ہے، یہ صرف ان کی خانوادہ اہل بیت سے تعلق رکھنے کی وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ اس گھرانے سے بہت سی خاتون تعلق رکھتی ہیں، جناب ام رباب، ام لیلہ، اس کے علاوہ جناب ام کلثوم، لیکن جو عظمت جناب بی بی زینب کبریٰ کی ہے وہ در حقیقت کسی اور خاتون کی نہیں ہے۔ یہ عظمت نسبت کی وجہ سے نہیں ہے، لیکن یہ عظمت اس لیے ہے کہ جو الہی فریضے کی بنیاد پر یہ عظمت قائم ہوئی ہے بی بی کی۔ اس عظمت کا بہترین جو سلسلہ ہے، یعنی جو سب سے اہم پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اس مرحلے میں بی بی نے ہمیں موقع شناسی سے رہنا سکھایا ہے کہ ہر موقع پہ درست فیصلہ کیسے کیا جاتا ہے۔ کہاں کہاں انہوں نے موقع شناسی دکھائی ہے؟ سب سے پہلے کربلا سے پہلے، یعنی کربلا جانے سے پہلے مدینے میں فوراً انہوں نے ارادہ کر لیا کہ میں اپنے وقت کے امام کے ساتھ کے لیے نکل پڑوں گی، حتیٰ کہ شوہر تھا، اولاد تھی، خاندان تھا، لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ موقع شناسی یہی ہے کہ میں ان کے ساتھ جاؤں۔ اسی طرح کربلا میں روز عاشور انہوں نے مختلف کام کر کے دکھائے، وہ اس وقت کی موقع شناسی تھی۔ اسی طرح دوسرے جتنے بھی مواقع ہیں ان میں کہیں پر خطبہ دے کے، کہیں پہ اپنی رائے کا اظہار کر کے، بالکل موقع محل کے حساب سے انہوں نے وہ عمل کر کے دکھایا ہے، الہی اقدام کیے ہیں۔ حتیٰ کہ مدینے میں جب امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ ہم لوگ یہاں سے نکل رہے ہیں، اور ایک دعوت عام تھی، ایسا نہیں تھا کہ مولا نے کوئی مشخص کیا ہو کہ بس میرا خانوادہ جائے گا، نہیں، مولا نے ایک کھلا رستہ دیا تھا کہ جس نے آنا ہے، جو میرے ساتھ چلنا چاہتا ہے، اور پورے رستے جو مسلسل مدینے سے مکے، پھر مکی سے لے کر کربلا تک گئے ہیں، تو مولا نے کہا کہ جس نے میرے ساتھ آنا ہے وہ آئے۔ یہاں تک کہ بیان کیا جاتا ہے کہ مدینے میں بہت سی ایسی معتبر شخصیات تھیں کہ جو رسول اللہ کے زمانے سے سب سنتی آ رہی تھی، لیکن ان سب نے اس وقت جانے کو ترجیح نہیں دی، انہوں نے بلکہ مولا کو تک یہ بولا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، آپ مت جائیے، آپ یمن چلے جائیں، مختلف ان کو آئیڈیاز دیے، مختلف ان کو پیشکش کی، لیکن اس وقت امام سمجھ گئی تھی، بی بی سمجھ گئی تھی کہ امام کو ہم نے تنہا نہیں چھوڑنا، حتیٰ کہ کربلا کے راستے کی جو خطرناک منزل ہے اس کے بارے میں بی بی سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ ہم سب روایات میں جانتے ہیں کہ جب جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت ہونے سے پہلے کہ جب انہوں نے اپنی بیٹی کو بلایا تھا اور سب کفن ان کے حوالے کیے تھے، مسلسل آپ مسائل میں سنتی ہیں، تو انہوں نے بتایا تھا، مسلسل اپنی زندگی میں جتنا عرصہ زندگی کاٹی اس میں یہ سنتی آ رہی تھی کہ کربلا میں کیا ہونے والا ہے، میرا بھائی کہاں لے کے جا رہا ہے۔ اس چیز کا احساس جناب زینب کے علاوہ اور کسی کو اتنا زیادہ نہیں تھا، کتنی بھی معتبر شخصیات ہوں، لیکن تب بھی بی بی نے اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے، خاندان کے ہوتے ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان کے بھی فریضے تھے، لیکن بی بی کو معلوم تھا کہ اس وقت الہی فریضہ اور جو سب سے اہم فریضہ ہے وہ یہی ہے کہ میں اپنے وقت کے امام کا ساتھ دوں، اور یہ چیز ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ کس طرح ہمیں یہ چیز کر کے دکھائی ہے۔ امام حسین کی شہادت کے بعد بھی یہ خاتون ایک روشنی تھی۔ اگر جناب زینب کبریٰ نہ ہوتی، اکثر آپ نے جملہ سنا ہوگا کہ اگر بی بی نہ ہوتی تو کربلا قائم نہ رہتی، وہ ختم ہو چکی ہوتی، کیونکہ بظاہر ان لوگوں نے یہی کہا تھا کہ ہم تو فتح یاب ہو چکے ہیں، ہم نے تو حسین کو مار دیا، ہم نے تو سارے لوگوں کو مار دیا۔ بہرحال یہ بہت سخت
जुमले हैं कि जिस पे हम लोग हमेशा गिरिया करते हैं, लेकिन ये सोचने का मकाम है कि अगर जनाब ज़ैनब ना होती तो इमाम हुसैन की ये कुर्बानी रायगा चली जाती। अगर जनाब ज़ैनब ना होती तो हो सकता है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी इस वक्त हयात ना होते। शहादत हुसैन से पहले भी आप इमाम हुसैन की एक सच्ची गमखार थी। किसी भी मौके पर आपने उनको अकेला नहीं होने दिया, इमाम हुसैन को थकावट का एहसास नहीं होने दिया, आपने उनको तन्हाई का एहसास नहीं होने दिया। एक एक करके लोग उनसे दूर भी हो रहे थे। जब निकला है काफिला, बहुत से लोग मिले हैं, बहुत से लोग जुदा हुए हैं, मदीने से बहुत से लोग नहीं मौला के साथ आए, लेकिन बीबी ने उनको तन्हाई का एहसास नहीं होने दिया। लेकिन फिर भी कुछ रिवायात में ऐसे मकामात हैं कि जहाँ पर बीबी ने बेचैनी का इजहार किया है। अजीज़ान मोहतरम, जनाब फातिमा ज़हरा हमारी तरह एक खातून थी, एक ऐसा एहसास भी रखती थी, क्योंकि आप खुद ये सोचें कि अगर हम खवातीन अगर अपने ऊपर रखकर सोचें कि हम कहीं अपने मर्दों के साथ जाएं और एक ही दिन में तमाम मर्द हमारे शहीद हो जाएं, तो फिर हमारी वो कैफियत कैसे नहीं होगी। तो इस तरह से अगर बीबी ने कहीं पर एहसास दिखाया है, कहीं पर कोई खौफ का इजहार अगर किया या कोई एक ऐसी बात कह दी, तो वो उनकी जाहिरी बात है निस्वानी एक वो थी, एहसास था। तो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ऐसा उस चीज़ की वजह से हो सकता है, लेकिन फिर भी कौन सा ऐसा ख़ानदान है कि जो हमेशा मुसीबत के सामने डटा है, कि जिसने हमेशा मुसीबतों के सामने सब्र किया है, वो यही ख़ानदान है। चाहे वो मौला अली के हालात हो, जनाब फातिमा ज़हरा के हालात हो, हत्ता के रसूल खुदा के हालात हो, हर मुश्किल हर मसाइब में यही वो ख़ानदान था कि जिसने हमेशा अपने आप को नफासत के साथ, पाकीज़गी के साथ, सब्र के साथ हमारे लिए एक रोल मॉडल बने और ऐसी मुश्किलात से किस तरह से निकला जाता है वो चीज़ हमारे लिए छोड़ी है। लिहाजा हज़रत ज़ैनब एक औरत की हैसियत से लतीफ़ ज़नाना एहसासात भी रखती थी, एक आम औरत की हैसियत से नहीं, बल्कि इमाम हुसैन की बहन होने के नाते, और वो भी एक ऐसी बहन, क्योंकि हम सबको मालूम है कि जनाब इमाम हुसैन और जनाब ज़ैनब की मोहब्बत, उनका प्यार पूरे लोगों में मशहूर है कि कितना प्यार करती थी वो अपने भाई से। एक ऐसी बहन कि जो अपने भाई के लिए, अपने इमाम के लिए अपना घर बार छोड़ के इमाम के साथ गई है, तन्हा नहीं बल्कि अपने दोनों बेटों को भी साथ लेकर गई है, ओनो मोहम्मद को। और ऐसी उन्होंने मोहब्बत दिखाई कि अपने बेटों की शहादत के बाद से लेकर जब तक मदीने चली गई, बीबी अपने बच्चों के ऊपर नहीं रोई, सिर्फ और सिर्फ हुसैन पे रोती थी, मौला अली अकबर पे रोती थी, और जितने भी बाकी शहदा थे उन सब के ऊपर रोया करती थी, क्योंकि वो जानती थी कि मैं ये कुर्बानियां अल्लाह की राह में दे रही हूँ। ये आजकल की माएँ भी जो कि शहीदों की माएँ हैं अजीजान, ये बहुत बड़ी फिक्र है कि जब आजकल के ज़माने में अगर आप शहीदों की माओं को की इंटरव्यू सुने तो वो क्या कहती है, वो कहती है कि अगर मेरे और औलादे होती तो हम उनको अल्लाह की राह में दे देते। यानी जब अल्लाह की राह में अपना बेटा, अपना भाई, अपना शौहर दिया जाता है, तो फिर निदामत नहीं होनी चाहिए, बल्कि फ़ख्र से कहना चाहिए कि खुदा का शुक्र है कि मैं शहीद की ज़ौजा हूँ, मैं शहीद की माँ हूँ, मैं शहीद की बहन हूँ। ये हमें किरदार दिखाया है ज़ैनब कुबरा ने। अलबत्ता इन हालात में उनका परेशान होना भी बनता है। वो हालात कि किसी भी औरत के लिए इंतहाई सख्त होंगे, क्योंकि वो ये जानती थी कि अब पीछे जो एक मर्द बचा है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, वो उस वक्त शदीद अलील थे, बिस्तरे बीमारी पर थे, और हालात जो बयान करते हैं कि खैमा गाह में तकरीबन 84 खवातीन थी और चंद बच्चे, और उन सब के हालात क्या थे कि वो सब भूखे थे, वो सब प्यासे थे, वो सब ऐसे थे जो खौफजदा और परेशान थे, और उन सबको संभालना था। ये बहुत तल्ख और बहुत ज्यादा वहशतनाक हालात हैं, लेकिन इन सब चीजों को संभालने वाली कौन थी? ज़ैनब कुबरा थी। वो एक खातून थी, और किस तरह से उन्होंने हमें ये मुकाबला करना सिखाया है। करबला में सिर्फ उन्होंने अपने भाई नहीं खोए थे, ना ही उन्होंने अपने सिर्फ 18 जवान बनी हाशिम के औलादे खोई थी बावफा असहाब, बल्कि उसके साथ साथ एक मुंतशिर काफिले की निगहदारी भी उनके कांधों पर आ गई थी, एक जिम्मेदारी आ गई थी। खुद इमाम ज़ैनुल आबिदीन उस वक्त ऐसी कंडीशन में नहीं थे कि वो उठकर काम कर सकते थे, तो उस वक्त उन सबको संभालना ये जनाब ज़ैनब कुबरा ने किया। ये जो मैंने आपसे कहा कि बीबी ने फैसला किया जब इन चंद घंटों में कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो गए थे, आशूरा के बाद से लेकर जब
दुश्मन ने ये सोचना था कि अब इस काफिले के साथ क्या करना है। वो चंद लम्हात में खुदा ही जान सकता है कि बीबी के क्या हालात थे। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, आपने रिवायात में पढ़ा होगा, अगर आप अभी भी तारीख की किताबों में पढ़े तो उसमें मुसलसल ये चीज नजर आती है कि बीबी मसरूफ अमल थी, भाग दौड़ कर रही थी, किस तरह से उस मुंतशिर काफिले को संभाल रही थी, क्या उनमें बच्चे हों, क्या उसमें इमाम हो, और जिस तरह से वो मुकाबला कर रही थी ये बहुत ही आसन था। ये जो कहा जाता है कि आशूरा वो दिन है कि जब करबला में खून ने तलवार पर फतह हासिल की थी, तो ये सच है। कहने को तो उनकी तलवारों ने सबको शहीद कर दिया था, लेकिन जो खून हुसैन था वो आजकल बोल रहा है। कौन है जो इस वक्त यजीद का नाम लेने वाला है? आप सब हुसैन के नाम पर यहाँ आए हैं, हर कोई हुसैन हुसैन कर रहा है और यजीद पर सब लान कर रहे हैं। ये गवाही देती है कि जनाब ज़ैनब कुबरा जीती है। इसी तरह खुदा मंद मुताल से दुआ है, खुदा आप सबको शाम की ज़ियारत करवाए, खुदा इस वक्त शाम को खबीस लोगों के हाथों से बचाए रखे और हम सबको बार बार उस जगह पे बुलाए और अपने इमाम वक्त के साथ हम लोग जाएं। अजीजान, उस शहर में लिखा हुआ है कि ये किसका शहर है? ये ज़ैनब का शहर है। ये सबसे बड़ी फतह है। ये जो लोग कहते हैं कि यजीद जीत गया था, यजीद कुछ नहीं जीता था। वो बज़ाहिर तलवार की एक जंग थी, लेकिन जो खून बहा है उस खून ने वाकई जीत की है। ये बहुत अहमियत के हामिल है ये लम्हात। इस वाक़े ने ये चीज साबित की है कि जो औरत ज़ात है, क्योंकि हमारी मजलिस ख़वातीन की है, हम औरतों को अपनी बीबियों से कुछ सीखना चाहिए। जनाब ज़ैनब कुबरा के लिए एक बुलंद दुरूद पढ़िएगा। इस वाक़े ने यह साबित किया है कि औरत तारीख के हाशिए में नहीं है, यानी जुदा नहीं है इस्लाम से, बल्कि तारीख के अहम वाक़यात में खातून शुमार होती है। ये एक जिंदा हकीकत है। बीबी ने पर्दा करके मुशाहिदा करवाया है। ज़ैनब कुबरा एक ऐसी हस्ती है। इसके अलावा अगर हम कहें कि जनाब ज़ैनब तो मासूम की औलाद में से थी, तो वहां पे और भी हस्तियां थी। जनाबे बीबी उम्मे रुबाब को देख लें, उम्मे लैला को देख लें, 6 महीने का जिसका बेटा चला जाए, जिसका 18 साल का बेटा चला जाए, तो क्या उन्होंने वो जिहाद नहीं किया? उन्होंने वो करके दिखाया और हम लोगों के लिए एक नमूना छोड़ा है। क्योंकि इस वक्त भी अगर आप देखें तो जनाब ज़ैनब कुबरा को याद करने वाले सब हैं, लेकिन यजीद को याद करने वाले नहीं हैं। यही वो कारनामा है जो मेरी बीबी का है। आपने अपने अमल से जाहिर किया कि खवातीन का जो हिजाब है वो पाक दामन मुजाहिदाना एक आपका अजीम जिहाद है। ये जो आप पर्दा करके आ रही हैं, आप अपने घर में किस तरह से दीन को फैला रही हैं, अपने बच्चों में फैला रही हैं, अपने शौहरों को सही कर रही हैं, ये आपका जिहाद है। पर्दे के साथ आप कैसे अपने ही खानदान की जो बिल्कुल बेराह शादियां हैं उनको आप अटेंड करके आप दिखा रही हैं कि ज़ैनबी किरदार ऐसा होना चाहिए। ये आप लोगों का हिजाब है। बस खुदावंद मुताल से दुआ करते हैं कि हमें बीबी के राह पर चलने की तौफीक अता करें। बज़ान मोहतरम, जनाब ज़ैनब का एक और लक़ब है उम्मुल मसाइब, यानी मसाइब की माँ। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बीबी को नाम दिया था। ये नहीं कहा कि वो मसाइब की बेटी है, लेकिन मसाइब की माँ। हत्ता कि जनाब फातिमा पे भी बहुत मसाइब पड़े हैं, लेकिन फिर भी मसाइब की माँ जनाब ज़ैनब कुबरा है। आप तमाम हालात से वाकिफ हैं। वो जितने भी मसाइब हैं, वो करबला के रस्ते के, शाम के, बस मैं वो मसाइब पढ़ना चाहूंगी कि जब मेरी बीवी मदीने पहुंची है और जब अपने नाना की कब्र पे गई है, अपनी जद की कब्र पे गई है, बीबी अपनी माँ की कब्र पे गई है, तो बीबी ने सब मसाइब पढ़े, इमाम हुसैन का मसाइब बताया, लेकिन बीबी ने वहां पर औनो मोहम्मद का गिरिया नहीं किया, अपने बेटों का गिरिया नहीं किया। अजीजान, जब बीबी अपने घर जाने लगी, बहुत दिल फट रहा है, बीबी को वानो मोहम्मद याद आ रहे हैं। बयान किया जाता है जैसी घर पहुंची है तो अब्दुल्ला इब्ने जाफर घर पे नहीं है। जब घर पहुंचती है, छोटी छोटी नमाजें बिछी हुई है जिसमें वानो मोहम्मद नमाज पढ़ा करते थे। बस उन नमाजों को उठाया है और अपने सीने से लगा के कहती है, वानो मोहम्मद मुझे तुम याद आ रहे हो, मेरा घर सूना हो गया है। बस जनाब ज़ैनब अभी रो रही है अपने बेटों के लिए। बयान किया जाता है कि अब्दुल्ला घर आ गए और अब्दुल्ला ने, अल्लाह जाने जनाब ज़ैनब के साथ क्या हुआ है कि वो पहचान न सके बीबी ज़ैनब को। कहती है, बीबी आप कौन है? मेरी ज़ौजा मौजूद नहीं है।
जब मेरी ज़ौजा आएंगी आप वापस आ जाएगा। बस जनाब ज़ैनब ने अपने दोनों हाथ सर पे रखी है, कहती है अब्दुल्ला तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं ज़ैनब हूँ। अब्दुल्ला और मोहम्मद शहीद हो चुके हैं, लेकिन न जाने अब्दुल्ला ने क्या देखा कि जमीन पर गिर गए। जनाब ज़ैनब ने कहा अब्दुल्ला क्या अपने बेटों की शहादत बर्दाश्त नहीं हुई? अरे बीवी ने अभी भी अपने सर पे दोनों हाथ रखे हुए हैं। अब्दुल्ला कहते हैं ज़ैनब वो दोनों तो हुसैन पे कुर्बान हुए हैं, जो अल्लाह की राह में दिए जाते हैं उनके लिए रोया नहीं जाता। बस एक सवाल का जवाब दे दो ज़ैनब, ये तुम्हारी कलाइयों पे निशान कैसे है? अरे सुन ज़ैनब ने सुनना तो कहा अब्दुल्ला इन हाथों में रस्सियां बंधी थी, शराबी का दरबार था, अली की बेटियां मजमाए आम में गई, फूफा शाम के बाजारों में गई थी। अरे लोगों के हाथों में पत्थर थे, अरे बागियों के दाने थे। अजीजान अगर किसी घर का कोई बंदा मर जाता है उसके सर पे हाथ रखा जाता है। ये पहली दफा ऐसा हुआ कि घर के भाई और सब हजरात मर गए, लेकिन इन लोगों को रस्सियां बांधी गई, ऊपर तमाचे मारे गए, पाँव में जंजीरें बांधी गई। खुदाया